versus childhood, and many more. And of course, we have so many questions that we want to be clear. So I am glad to tell you that we are fortunate to have Dr. Kavita Bhargava ma'am with us today, who is leading India's leading psychotherapist and accomplished IMDHA certified clinical hypnotherapist. She is gold medalist in psychology as well, and she is transpersonal regression therapist, and she is international trainer as well. So, my warm welcome to Dr. Kavita Bhargava, ma'am. Over to you. Thank you, Shruti, and good afternoon to all of you. I would humbly request if all of you can just switch on your videos, and I would love to see you. Yogita ji, long time. Yes. कैसे हो? How are you? I am good. I had COVID 14 दिन पहले, तो थोड़ा सा बस गले में खराश है अभी, बाकी rest everything is good. Okay. Hi, I'll talk to you Vibhas. personally after this session. Not immediately after this session. Today I am occupied till 8:30. So आज नहीं possible होगा. Maybe Okay. Friday we can schedule something. Okay, done. जी. Vibha ji, how are you? Good afternoon, ma'am. So Good nice to see you. How are you? I am good. Thank you so much. All good at your end? Yeah, everything is fine, man. Thank you so much, ma'am. Wonderful. Lavanya, I see you regularly in my Safarnama sessions. Shruti has been holding and picture aa jati hai mere paas. How are you doing? क्या हुआ था बीच में? वो बस ऐसे एग्जाम्स के कारण। हो गए एग्जाम्स? नहीं, अभी चल रहे हैं। अच्छा, कब खत्म हो रही है? 15 मार्च। ओके, कूल, जल्दी हो रहे हैं। 15 दिन ही बचे। Anyway, you all good? अच्छे जा रहे हैं? Yes. ठीक है, perfect है। Hi, Suman ji. This is the first time we are meeting, I guess. Yes, ma'am. Yeah. Ji, so I would like to know a few words about yourself. Some introduction. कहाँ से आए, कैसे पता चला, श्रुति कहाँ से ढूंढ के लाई आपको, या आपने श्रुति को ढूंढा है? मैम एक्चुअली सब कुछ पूरा वाया हुआ है। मैं छवि मैम को जानती हूँ, छवि दमानी। ओके, मेरा पंडाला वाला ग्रुप। या करेक्ट। ओके, सुमन लिखा है ना, सुमन बेन के नाम से मैं पहचानती हूँ। अच्छा। How is Ahmedabad doing? All good? Yes, ma'am. Everything is good. Wonderful. Ashok, welcome to the group. And yeah, first day I'm seeing you, and I'll see you soon. So, कैसे हैं आप? I'm good. मैं ठीक हूँ मैम. I'm absolutely fine. Okay, good to have you here. Thank you. Okay, so as all of us know, this is the bonus round for a sequel that is already going on, और काफी कुछ आप लोग शायद सीख चुके होंगे एक दूसरे की experiences सुन के, श्रुति को सुन के. It's like a support system to each other. Before I start the main task that is given to me by Shruti, I would like to talk about something about mind, जो कि सबको समझना चाहिए. I don't remember if I spoke about it in the last session और कितने जने थे मुझे नहीं पता है. So I would just like to quickly draw your attention to mind कैसे work कर रहा है. ठीक है? Just that मैं आपको देख नहीं पाऊंगी क्योंकि iPad से login हूँ. मेरा screen off हो जाता है, मतलब मैं भी नहीं दिखूंगी शायद. तो अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो please verbalize करना होगा उस time पे. Okay? One second. I guess whiteboard से तो मैं देख पाऊंगी. Yeah, I can. Okay, so अगर हम mind समझ रहे हैं, okay, अशोक जी तो बिल्कुल ही नए हैं. I need to explain them. So अशोक जी, mind और brain के बीच में ना फर्क होता है. Brain यहाँ होता है, जो हमारा skull होता है. कुछ 14-50 ग्राम सबको मिलता है. And अपनी जो बॉडी है उस पे वो ऑपरेट करता है. तो अगर मुझे सपोज ये मेरा अफ्रेश है, ये पीना है, तो पहले माइंड में थॉट आएगा, माइंड से ब्रेन में कमांड जाएगी, और फिर ब्रेन मेरे इधर रिसोर्सेज देखेगा
कि बनाना पड़ेगा या बना हुआ है अभी पी लूं, राइट? और अभी पीऊं या एक शब्द और बोल के सिप मारूं, ये सारे रीजनिंग किधर होएगा? पहले माइंड में, और फिर रिसोर्सेज देख के ब्रेन कहेगा ओके दिस इज द राइट मोमेंट, हैव द सिप नाउ। ठीक है? Mind, on the other hand, is a big ball of energy, approximately 12 feet in diameter. Center is in the pit of the stomach where we feel the butterflies. So brain क्या हो गया? हार्डवेयर। उस हार्डवेयर पे ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर है, उसे हम माइंड कहते हैं। ठीक है? तो दोनों ही सिचुएशन में इफ वी अंडरस्टैंड ब्रेन माइंड में डिफरेंस भी, तो बिग बॉस हम किसको कह सकते हैं? एनीवन? कौन होगा बिग बॉस? माइंड। माइंड, राइट। और माइंड को हिंदी में हम बोलते हैं मन। हम कहते हैं ना मेरा आज मन नहीं कर रहे। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? दैट्स माइंड। ठीक है? तो अगर कोई डॉक्टर होता है, वो दवाई देता है आपके ब्रेन, आपकी बॉडी की बायोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, और हम लोग जो बाकी सारी प्रॉब्लम से, वो किधर से आ रही है? थॉट प्रोसेसेस से, माइंड से, मन से। तो अगर मैं ये गोला इधर बनाती हूँ और एक लाइन समवेयर सेकेंड यहाँ खींच देती हूँ, तो इतना पार्ट इज चेतन मन और कॉन्शियस माइंड। Rest everything here is the subconscious mind. Now the conscious mind is only 10 to 12%. Subconscious is 88 to 90%. Correct. और 9 times bigger है तो कितना हुआ? 6000 times more powerful as compared to the conscious mind. ठीक है? तो जो हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस हो रही है, वो सिर्फ इतने से पोर्शन यानी कॉन्शियस माइंड में चल रही होती है। थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, अगेन थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, वो क्या है? थिंकिंग टू ओवर थिंकिंग कौन लेके जा रहा है? द कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस नो जजमेंट चैप, इसको जो दोगे वो फटाक से फाइलिंग कर लेगा। इसका इतना काम है, स्टोर हाउस है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फंक्शन क्या है? सिर्फ एक, इन सबको स्टोर करने का क्या क्या इसको जरूरत है? बिकॉज इट लुक्स आफ्टर आवर सर्वाइवल। होते ना, हम हमारी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, उनसे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? वो यहाँ स्टोर्ड होते हैं समवेयर लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव फाइल्स, इवेंट। ठीक है? लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सबसे पहले कभी सफरनामा ज्वाइन किया एज अ ग्रुप, फाइल बनी यहाँ, इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है क्रिटिकल फिल्टर, जिसे हम कहते हैं। ये क्रिटिकल फिल्टर हैज द सीयर। सीयर क्या है? सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस बेसिस। ये वो चश्मा है जिससे मैं दुनिया देख रही हूँ। If I'm wearing red glasses, दुनिया कैसा दिखेगा? रेड। ब्लू लगाया तो ब्लू। ग्रीन लगा लूं तो ग्रीन। भाई दुनिया वैसा ही है। चश्मा किसने लगाया? मैंने। करेक्ट। अभी ये जो चश्मा है ना, ये जो सीयर है, इसी को हम बोलते हैं द बिलीफ सिस्टम्स, जिसपे आप पिछले 3 सेशंस कुछ कुछ सीख रहे हैं। ठीक है? सो व्हाट वी नीड टू डू इज, एक चश्मे को, मतलब हमारे चश्मे से हम दूसरे के चश्मे को ना जज करें, और अपने चश्मे को थोड़ा साफ कर लें। बस इतना सा खेलना है आज वाले सेशन में। ठीक है? अब अगर पहली बार आपने, मैं एग्जांपल दे रही थी, सफरनामा अटेंड किया, फाइल यहाँ बन जाती है कुछ 1.5 घंटे में, जितने भी मैसेज यूनिट्स होते हैं उसकी। जब हम सोते हैं, फाइल आती है सीयर यानी लेयर ऑफ जजमेंट में। बिलीफ सिस्टम से हम जज कर रहे हैं पूरी दुनिया को उस फ्रेम ऑफ क्लासेस से। इतना क्लियर है? Yes. अब सपोज वो सफरनामा में आपको, आपने लोगों से कनेक्ट किया, यू गॉट टू लर्न समथिंग, राइट? इधर जजमेंट आएगा, सफरनामा गुड और बैड, गुड का जजमेंट, राइट?
फाइल नीचे आएगी, दिस इज द लेयर ऑफ फीलिंग। यहाँ पे जो भी फाइल ऊपर जज हो रही है उस पर फीलिंग अटैच हो जाती है। यहाँ फाइल आई, जजमेंट गुड है तो फीलिंग कौन सा अटैच होगा? हैप्पीनेस, पॉजिटिव, प्लेजर, और फाइल इस तरह से स्टोर हो जाती है। क्लियर? अभी इधर जो गया वो 6000 टाइम है, बोले तो ये तो मैनिफेस्ट होके रह गई क्योंकि ये नीचे जा चुका है बड़े वाले पार्ट में। ओके, नाउ अगर एक फाइल बनी, हमने अपने मम्मी पापा से कोई बात सुनी, कही, या वॉट एवर, राइट, या हम पेरेंट्स को सिखाना चाहते थे, हमने कुछ और किया और थोड़ा सा टसल हो गया, वो टसल का फाइल इज इधर, बिलीफ सिस्टम में जाएगा, जजमेंट वाली लेयर में। जजमेंट, मम्मी पापा गुड और बैड, बैड। भाई वो अपने तरीके से सिखा रहे थे मेच्योर्ड से, तो मम्मी पापा तो इधर बैड हो गए क्योंकि हमारी अभी तक विजडम उतनी नहीं आई है उस एज तक, राइट। हम अपने परसेप्शन से, अपने चश्मे से देख रहे हैं, वो अपने चश्मे से दिखा रहे थे, राइट। तो मम्मी पापा बिकम बैड, जजमेंट हियर। फाइल नीचे आएगा और फीलिंग अटैच होगी। कौन सी फीलिंग अटैच होगी इधर? सैड। और एंगर, यस। वो जो भी पेन वाली है, ठीक है। और ये इस तरह से ऐसे स्टोर हो जाएगी। अभी ये क्या हो गया? ये भी गया इधर, मम्मी पापा का फाइल विथ एंगर एसोसिएटेड। तो अब अगली बार सफरनामा ज्वाइन कर रहे हैं, अगर प्लेजर है, सफरनामा की फाइल में प्लेजर एसोसिएट होगा, अगली बार फिर एसोसिएट होगा। सो whenever you are here in this group you feel very happy क्योंकि प्लेजर का फाइल एसोसिएटेड है, राइट। पर मम्मी पापा के साथ में ये मम्मी पापा का फाइल है, अगले दिन फिर कुछ होता है, एक ऐड हो गया, फिर एक पन्ना ऐड हो गया, एक पन्ना और, ये एंगर इंक्रीज होता जाता है, राइट। मे बी बचपन से ऐसा कुछ चलते है। Now suppose you are at the age of 50, you have no reason to fight with your parents or feel angry when you look at them. But somehow there is something whenever you look at them, क्या होता है? अंदर से तिलमिला उठते हो, पता ही नहीं है क्यों ऐसा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही ने तो कुछ यहाँ स्टोर कर दिया, अननोन, नोइंगली, राइट। तो कॉन्शियसली नहीं करते हम, हमें पता ही नहीं है माइंड कैसे चल रहा है, ठीक है ना। कुछ बिलीफ सिस्टम्स में यहाँ देख रही थी। साक्षी entered the waiting room, hold on, okay. श्रुति थोड़ा सा ध्यान रख लेना जरा, अगर कोई एंट्री एग्जिट हो रहा है। Yes, ma'am. Yes. ओके, नाउ बिलीफ सिस्टम में अगर हम बात कर, अच्छा दूसरा कॉन्सेप्ट भी मुझे यहाँ समझाना था, इट्स इम्पोर्टेंट वन, सो दैट आगे हम देखेंगे क्या है। आई कॉल इट द फ्लो चार्ट नंबर 1। किस किस को मैंने ये सिखा दिया है, प्लीज मुझे ना हैंड रेज करके बता दो, किस किस को आता है फ्लो चार्ट नंबर 1? हैव आई टच्ड अपॉन दिस पॉइंट अर्लियर? नो 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 नो, ठीक है, परफेक्ट है। तो फिर ये समझना जरूरी है। अभी एक बिलीफ सिस्टम है जो मेरे पास में श्रुति ने भेजा आप सभी से कलेक्ट करके अभी रिसेंटली, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, राइट। दीज टू, इफ वी अंडरस्टैंड दिस, ओके। माइंड है, माइंड का बेसिक फंक्शन क्या होगा? थॉट। उसका काम है सोचेगा, बेसिक फंक्शन है, किसी से काम नहीं ले सकते ना अपन उसका वापस। थॉट दो टाइप का होता है क्योंकि वो एनर्जी है। थॉट इज नथिंग बट अ पैकेट ऑफ एनर्जी। हमें पता है एनर्जी दो टाइप की होती है, पोटेंशियल, काइनेटिक। साइंस में हम ये पढ़ के आए हैं, एनी एनर्जी विच इज लाइंग स्टैटिक, जो रुकी हुई है, वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, रुकी हुई एनर्जी। अभी मैंने अगर उस पोटेंशियल एनर्जी पे अपने कॉन्शियस माइंड को लगा दिया, यानी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग वाले जोन को लगा दिया, यानी कॉन्टेम्पलेट कर लिया, वो वाला थॉट क्या बन जाएगा?
energy in motion. That is kinetic energy. When I'm saying mind is a big ball of energy, 12 feet in diameter, believe me, all the thoughts are already around you. अब उन सभी थॉट्स में से जो पोटेंशियली रुके हुए हैं, अगर मैं उनको कुरेदूंगी, बाल की खाल निकालूंगी, तो क्या होगा? Those potential thoughts will change into kinetic energy, energy in motion. Energy in motion is nothing but emotion. अभी ये इमोशन मेरे तक है, ठीक है, पर मैंने अगर ज्यादा और कुरेदा, this emotion now will become a feeling and it will be represented in front of other and people will know what I'm feeling inside. Correct? फीलिंग मेरा एक्सपीरियंस बनाएगी. सपोज वन डे I'm thinking I'm not worthy. ठीक है, कौन कौन रोल प्ले कर सकता है मेरे साथ? कौन आएगा? सुमन जी, सुमन बेन, आप आएंगी? ओके. परफेक्ट. मन में सोचने का है I am not worthy. Keep thinking about that. I am not worthy. I am not worthy. Give me the emotion. एंगर. Anger आ रहा है. Keep repeating the thought. Look at her face. कैसा दिख रहा है इनका? बिल्कुल सड़ू सा फेस, वेरी सीरियस, कुछ नहीं. अभी मेरे सामने एंगर में ऐसे बैठेंगी, मैं इनको प्यार से थोड़ी बात करूंगी. इफ आई एम नॉट रियल, राइट? तो मैं भी डबल एंगर में बात करने वाली हूँ. अगर हम घर वाले होते हैं, उनके सामने क्या करते हैं? इफ वी आर इन एंगर, वी आर आवर ओरिजिनल सेल्फ्स. तो अभी हम चिल्लाएंगे, सामने वाला डबल चिल्लाएगा, तो हमारा एक्सपीरियंस क्या बन जाता है? बैड एक्सपीरियंस, एंगर, आई एम नॉट वर्दी. वो चिल्लाएगा, हमें फिर लगेगा आई एम नॉट वर्दी. बराबर. मतलब मेरी तो कोई औकात ही नहीं है ना, वो वाले वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं, सब मुझ पे चिल्लाते रहते हैं, राइट? और मैं कितना ही कर दूं लोगों के लिए, मुझे फिर से चिल्लाने को मिलता है. लोग मुझे चिल्लाते हैं एज इफ आई एम द पंचिंग बैग. तो एक्सपीरियंस क्या बन गया? आई एम नॉट वर्दी. अगेन यू कंक्लूड फॉर योरसेल्फ, राइट? अभी ये जाके स्टोर होएगा इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ चेतन मन, जो कि 6000 गुना शक्तिशाली है. एंड आगे से वही रियलिटी घूम के वापस आएगा. द मोर अनवर्दी यूल कीप फीलिंग. ठीक है? नाउ अनवर्दी अगर फील करोगे तो टेल मी, कैन यू डू समथिंग विच इज वेरी प्रोडक्टिव विद योर लाइफ? तो क्या हुआ? रियलिटी में अनवर्दीनेस और आ गया. नाउ इफ यू डीरोल योरसेल्फ फ्रॉम हियर and think about I am, or I deserve all the happiness of the world or the best things in the world. Think about those things, those thoughts. I deserve the best in my life. Give me the emotion. Happiness. And can you see, children, all of you, can you see her face? Yeah, you can see her face. Do I need to say something more? Now, if No. somebody is looking at me and talking with a smiling face, a happy zone, how will I feel and respond back? Similarly, right? Or experience हो जाएगा क्या? She will feel more happy about herself. Somebody spoke to her very nicely. Yes, तो इसके experience में आ गया क्या? Very worthy and I deserve the best. Okay? Now, this file goes in the subconscious and becomes 6000 times powerful. आगे से अभी if she is happy, can she be productive? Yes or no? Yes. She will definitely be more productive. और पहले अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं, अगर पहले वो $10,000 कमा रही थी, अब हो सकता है $15,000 कमाए हैप्पी स्टेट से, राइट? अगर अब घर का देखते, अगर बच्चों को खुश रख पा रहे थे, उनकी परसेंटेजेस आ रही थी, वो हैप्पी थे,
With her being happy with this thought, what will she invite? Better percentages for the children and better happiness in the family, better health of the family. Complete mental health system will change. Are we clear? Yes. Yes. So this is how it impacts everywhere. Okay, who's talking? Vibha? This is Vibha. If I'm हाँ जी. allowed, आवाज then network I would ask. network नहीं अच्छा है Vibha. If I'm allowed, ma'am. Oh, everybody, Yes, ma'am. everybody. Am I allowed to turn off my camera if it? Yes. I guess this is better. Yeah. Yes. So, ma'am, my question is like you were explaining कि हम अपने मन को कुरेदते हैं. So जो हम है, हम भी तो अपने मन का ही पार्ट है ना मैम. Like मन ही तो मन से पूछ रहा है. What is the difference between कि मुझे गुस्सा आया, जो जानने वाला है कि गुस्सा आया, और जो उसको फीलिंग को डिफरेंशिएट कर रहा है, पहचान रहा है, वो भी मन का ही पार्ट है या वो अलग है सबकॉन्शियस माइंड से या कॉन्शियस माइंड से? Okay. अगर we understand this concept, तो इसमें subconscious thinking, reasoning, analysis नहीं कर रहा है. Thinking, reasoning, analysis कौन कर रहे हैं? Conscious part. कॉन्शियस माइंड. ठीक है. तो जो क्वेश्चन है थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, कॉन्टेम्पलेशन का, ये वाला पार्ट कर रहा है. इज दैट क्लियर? The one who is asking, जी मैम, the one who is experiencing or who is asking is conscious mind. पहले थॉट की बात करते हैं. जो थिंकिंग, रीजनिंग, ओवर एनालिसिस, कॉन्टेम्पलेशन हो रहा है, दैट इज थ्रू द कॉन्शियस पार्ट. करेक्ट? इतना आया? अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे पता चल रहा है नहीं, या मैं नहीं, पता चल रहा पे नहीं जा रहे. अभी हम थॉट की बात कर रहे हैं. पहले ये समझो. ये आ गया? ओके. राइट. इस फ्लो चार्ट में से सबसे पहले हम थॉट समझ रहे हैं. ये थॉट किधर हो रहा है? ऑन द कॉन्शियस माइंड में हो रहा है. करेक्ट. अब इफ वी अंडरस्टैंड, वी हैव सम 7 बॉडीज. एक फिजिकल बॉडी होता है, उसके आसपास 6 बॉडीज और होता है, एनर्जी बॉडी जिसे हम कहते हैं. ठीक है. इसमें से जो 7th बॉडी होता है उसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं. विभा, आई गेस यू रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम सफर से सफर तक. I think I was not in that session, ma'am. This is अच्छा. something new to me. दिस इज फिजिकल बॉडी, जहां पे मैं और आप अलग दिख रहे हैं. उसके बाद होती है ऑरा बॉडी. जी. After that is the emotions body. Then mind body. Mind के साथ entwined होके आता है soul body. फिर आता है causal body. और finally astral. ठीक है. ये 7 bodies all of us carry. Now, ये लेयर्स की फॉर्म में होती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर. no. This is a 3D thing. मैं 2D में ऐसे ही बना सकती हूँ. ओके. ठीक है? ओके. So now इसमें से एस्ट्रल बॉडी का, जैसे हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, ये निकलता है और पास्ट, प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर में ट्रैवल कर लेता है. कई बार ये फ्यूचर में भी जंप करता है, वहां से कुछ इम्प्रिंट्स ले आता है, और जब रियल लाइफ में हमारे साथ वो चीजें हो रही होती हैं, हम उसको देजा वू का नाम देते हैं. राइट? ये तो मेरे साथ हो चुका है. मेरे साथ बहुत होता है मैम ये. So वो एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है. अभी Okay. हाफ एन आवर पहले भी हुआ था. परफेक्ट है. तो ये सेशन आपने पहले देख लिया होगा. ओके. So that's astral body. Okay. Now, soul is all knowing, all powerful. It understands everything, the complete blueprint जो हम लेके आए. उसको पता है अभी नेक्स्ट लर्निंग ये है, नेक्स्ट लेसन ये है. लाइक श्रुति ने 3 सेशन ले लिए, अब कविता की बारी है. सोल नोज
कि भैया ये अब रेडी हैं ये नॉलेज लेने के लिए, इसीलिए I mean in Safarnama we don't share these deep concepts, पर Vibha is sitting here, that means the frequency of this soul group is little higher, तो ये पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे. ओके, नाउ सोल नोज एवरीथिंग. अब क्या होगा, सोल क्योंकि जानता है नेक्स्ट लेसन की बारी आ गई है, तो वो इवेंट्स कॉज करने लगेगा. कॉजल बॉडी क्या है, ईथर से कनेक्टेड होते हैं हम सब. फ्लेम का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, अगर कैंडल जलाएंगे तो ब्लू जोन दिखता है, दैट्स द ईथरिक लेयर. सिमिलर, करेक्ट, थ्रू दिस ईथर ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड. सो दिस कॉजल बॉडी हैज दोज एलिमेंट्स. ठीक है, तो अगर सोल को पता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी पिक अप, सपोज विभा को आज ये सीखना है कॉन्सेप्ट, या विभा के थ्रू सबको सीखना है. ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले क्योंकि विभा का सोल ग्रुप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होना चाहिए कि सबको ये समझ आए, तो कॉजल बॉडी आप सभी, हमारे ग्रुप में आज मेरे को इंक्लूड करके 7 पीपल आ गए, तो ये 6 जने जुड़ेंगे. श्रुति को सबसे पहले आइडिया आएगा कि अच्छा मुझे ऐसे ऐसा बिलीफ सिस्टम पे कुछ करवाना है और उसमें बोनस राउंड लेना है, उसमें डॉक्टर कविता आएंगी. ठीक है, उसमें विभा भी आएंगी और सोल ग्रुप सारा जुड़ेगा, तब जाके एक बैच बनेगा. करेक्ट, जिसको मैं ये कॉन्सेप्ट समझा सकती होंगी. नहीं तो अगर लोअर फ्रीक्वेंसी वाले होंगे उनको नहीं समझा सकती, वो नहीं समझ पाएंगे. ओके, नाउ ये इवेंट कॉज किया, यानी इस डेट पे, इस वक्त पे मुझे यहाँ होना था अलोंग विद ऑल ऑफ यू. नहीं तो श्रुति नहीं बोलती तो मैं नहीं आती थी. ओके, सो अभी इसने अनाउंस किया, विभा का माइंड देखिएगा, अच्छा डॉक्टर कविता आ रही हैं, शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, तो अकॉर्डिंगली सोचने लगेगा चीजों को, थॉट्स को, राइट. और उन्हीं पे कॉन्टेम्पलेशन का एनर्जी होगा, जाऊं नहीं जाऊं, हाँ शी मे टीच समथिंग डिफरेंट दिस टाइम, चली जाती, राइट. एंड यू विल सिट हियर, ऑफ कोर्स उससे पहले इमोशन आएगी, I'm going to learn something, happy emotion probably, or excitement or whatever. ये इमोशन ऑरा बॉडी, चक्रा जहां पे होते हैं, उसके थ्रू फिजिकल बॉडी पे आएगी. अब फिजिकल बॉडी पे विभा ये फीलिंग्स के रूप में दिखाई देगा. आर वी क्लियर? यस मैम. परफेक्ट. यस मैम. फीलिंग के रूप में कैसे आया, फाइनली शी विल एक्ट. ओके, आई एम कमिंग, लॉग इन आईडी क्या है, मैं आके बैठ रही हूँ. ठीक है, हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है. अभी क्लियर? नाउ योर क्वेश्चन, थॉट किधर हुआ, कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड. करेक्ट. इमोशन किधर गया, इमोशन बॉडी पे. इसके थ्रू यहाँ पे चक्रास ऑरा बॉडी के थ्रू आके छन के ये फीलिंग फिजिकल बॉडी पे आता है, और एक्सपीरियंस भी फिजिकल बॉडी के थ्रू हम लेते हैं. तो हमारा थॉट या हमारी नॉलेज यहाँ से इतना कुछ करके जब हम एक्सपीरियंस ले लेते हैं, विजडम में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, और जी. जैसे ही हम सोते हैं, फिर से माइंड क्या करता है, इसको स्टोरिंग शुरू करेगा. एक्सपीरियंस भी किधर जाएगा, पहले कॉन्शियस माइंड पे, सोते ही सबकॉन्शियस के अंदर घुसेगा. और अब यहाँ से ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू जो ग्रिड है कॉस्मिक एनर्जी का, ये आपकी रियलिटी बनाता जाएगा. ऐसे अभी आया समझ में क्या हो रहा है? जी मैम, थोड़ा थोड़ा आया. हाँ, अभी रिकॉर्डिंग इसीलिए मैंने ऑन करके रखा है, 2-3 बारी और समझेंगे सुनेंगे तो समझ पड़ेगा. ठीक है, सो अगर जी, सोल को पता था कि मुझे आज कुछ अपनी रियलिटी में अपने थॉट प्रोसेस से कैसे बनाती चली जा रही हूँ, तो उसको ये डीप में समझना था. सोल का लेसन था, लेट मी कम बैक हियर. सोल का प्लान क्या था, finally learning and understanding how I am creating my destiny. या मैं जो सोचूंगी उससे कैसे वही होता जाएगा. ठीक है,
माइंड ने हाँ जी अकॉर्डिंगली सोचा, यार ये कॉजल बॉडी पहले इवेंट क्रिएट करेगी, ग्रुप बनाते हैं, चलो श्रुति अनाउंस करेगी, फिर माइंड सोचेगा अच्छा चलो चलो, उस टाइप के थॉट ले आएगा, करना ही है ये ज्वाइन। थॉट में जैसे ही कॉन्टेम्पलेशन होगा, एनर्जी इन मोशन होगा, इमोशन इधर आएगा। ठीक है विभा? जी मैम, जी मैम, जी जी कूल। अभी जितना स्ट्रांगली हम इमोशन फील करेंगे उतना स्ट्रांगली हमारा चक्रास घूमेगा और वो फिजिकल बॉडी पे आएगा इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग्स। क्लियर? ओके और जी फील जी अब यहां से देखेंगे हम इधर थॉट फ्लो चार्ट नंबर 1 पे फीलिंग क्या बनाती है? करेक्ट, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस फिर से माइंड से कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और रियलिटी में हमें वही मिलता है हम जिस पे फोकस कर रहे होते हैं। So now I am about to make this as a reality. Yes. So with each thought, every day, all of us are creating a reality for us. तो अगर हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम की, जहां पे ये पॉइंट आया है, जो सोचोगे या जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जो सोचोगे वैसा बनोगे, that is not just a limiting belief system but a reality of fact of life if we understand the science behind it. इसीलिए डिफरेंट सोचना जरूरी है, राइट? अब डिफरेंट सोचने के लिए कुछ ऐसा नहीं करना है कि आउट ऑफ द वर्ड कुछ सोच के। योगिता जी, आई गेस आपकी बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, आप प्लीज म्यूट कर लें। सो ऐसा सोचने के लिए मीन व्हाट डू यू नीड टू एक्चुअली थिंक, ये समझना है। करेक्ट भाई, ये तो क्लियर है ये 2 पॉइंट कि हम जो सोचेंगे या जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, या जो सोच होगी वो करेंगे। सी पेरेंट्स या अगर हम अथॉरिटी की बात कर दें, जिन पे जो लोगों पे हमारी जो हमारे पेरेंट्स है, जिन्होंने हमें पाला बड़ा है, या टीचर्स हैं या जो भी हैं, वो कहते हैं पर उनको लॉजिक नहीं पता होता उसके पीछे, एंड दैट फ्रस्ट्रेट्स अस थ्रू एंड थ्रू। बराबर, लॉजिक इधर मैं दे रही हूँ, वो क्यों कह रहे हैं? ठीक है, इसको समझने का है और लड़ना नहीं है उधर। ठीक है, यहाँ क्या नाउ कैसे सोचें, कौन सी बातों को सोचें, अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को ब्रेक कैसे करें, उनसे ओवरकम कैसे हों। कुछ 7 P बता रही हूँ, 7 P's या पावर ऑफ वर्ड्स की मैं बात करती हूँ। अगर फर्स्ट P होता है पॉजिटिव। जो लैंग्वेज है 1 2 3 4 5 6 7, हमारी लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से पॉजिटिवली वर्ड करना है। ठीक है, जैसे नहीं मैं तो ये नहीं करने वाली हूँ आज के बाद, या मैं आगे बीमार नहीं पड़ूंगी, अगर मैंने ये कर लिया तो मेरे साथ ये नहीं होगा। हाँ, द यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड बीमार नहीं पड़ोगे, उसको नहीं थोड़ी सुनाई दे रहा है, उसको क्या सुनाई देता है? बीमार पड़ोगे। तो पॉजिटिवली वर्डेड रखना है। बोले तो आई एम हैप्पी हेल्दी एंड फाइन, मैं जो भी कर रही हूँ मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। वो शब्द ज्यादा सुनाई देगा उसे, नॉट नहीं सुनाई देता उसको, या नो लॉन्गर भी सिक नहीं सुनाई देता, आई एम हैप्पी हेल्दी एंड फाइन सुनाई देता है। ठीक है, दूसरा P प्रेजेंट। इंग्लिश लैंग्वेज में भाई अगर ये 7 P समझने हैं ना, तो मेरे को लगता है एक सफरनामा में ना विभा को बैठा देते हैं एज रिसोर्स। अंग्रेजी के कौन से शब्द होने चाहिए जो आपको सीखने हैं? ठीक है, प्रेजेंट टेंस। ओके, आई विल बी हैप्पी हेल्दी एंड फाइन विल नॉट वर्क, फ्यूचर नेवर कम्स। ठीक है, आई एम हैप्पी हेल्दी एंड फाइन वर्क्स, प्रेजेंट टेंस का बात करना है।
मैं ये करूंगी, मेरे लिए ये हो जाएगा, मुझे मनी मिल जाएगा, ये नहीं वर्क करेगा। क्योंकि फ्यूचर को मतलब यूनिवर्स कह रहा है तथास्तु टू एवरीथिंग ना। अब फ्यूचर जब आएगा तब देख लेना, फ्यूचर तो कभी आता को ना। क्या आता है? प्रेजेंट। यस कल जब हम यस यस हेलो हाय बोल रहे थे, जो जो आ रहा है ग्रुप में, या थोड़े मिनट पहले हम बोल रहे थे, क्या हम फ्यूचर में बैठे हैं? हम तो प्रेजेंट में आ गए ना। और आज जो पास्ट, आज कल हम जब देखेंगे तो आज जो हम बात कर रहे हैं इस मोमेंट को, पास्ट हो जाएगा। राइट? अंडरस्टैंड, प्रेजेंट इज ऑल वी हैव, which is why it is called present, a gift from God Almighty. Right? right. So present में रहने का है. Okay? Then plausible. भाई यूनिवर्स से मैं बहुत कुछ तो नहीं मांग रही, जो हम हिंदी में बोलते हैं मेरी ऑक्स के बाहर तो नहीं है कुछ। क्या होता है, सबकॉन्शियस समझता है मैं कितना गेन कर सकती हूँ और कितना नहीं। ठीक है, अगर मेरे पास में एक बहुत लोअर इनकम ग्रुप का कोई आता है और वो कहता है मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, और मैं बीइंग थेरेपिस्ट उसको सपना दिखाने लग जाती हूँ 6 महीने में तुम्हारे पास नई गाड़ी आ रही है मर्सिडीज बेंज, सबकॉन्शियस कहेगा चल हट, खाने के तो लाले पड़ रहे, तुम मर्सिडीज बेंज दिलाने जा रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या करने का है, 6 महीने में सेकेंड हैंड मारुति 800 प्लॉजिबल है, अचीवेबल है। उसके अगले 6 महीने में कुछ और बोल देता हूँ, उसके अगले 6 महीने में कुछ और, एंड फाइनली मर्सिडीज बेंज। पर वो आएगी, पर चंक करके आएगी, 1 स्टेप एट अ टाइम, प्लॉजिबल। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिसाइज। जैसे प्रिसाइज क्या है, 1 थिंग एट अ टाइम, नॉट एवरीथिंग एट अ टाइम। भी अगर हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं, ठीक है, तो सारा खाना होता है, सारा प्लेट पे रख लेते हैं, कितना वेस्ट होता है उसमें? A lot is wasted, right? घर पे हम 2 सब्जी खाएंगे, 1 सब्जी खाएंगे, कितना वेस्ट होता है? 1 thing at a time. Okay? Yes. Yeah. So imagine, let me give you this example जो मैं काफी जगह देती हूँ। एक आदमी था, उसने प्रेयर की, या खुदा मुझे बड़ी सी गाड़ी दे दे, बड़ा सा पैसे का बैग दे दे झोला भर के, और बहुत सारी लड़कियों के आसपास रख दे। अभी यूनिवर्स कहता है तथास्तु, और उसको बस का कंडक्टर बना देता है। It's of no use, right? So वो बेचारा मांगता है, अच्छा लड़कियां दे दे, या पैसा दे दे, या जॉब दे दे, या कुछ, 1 thing at a time। तो यूनिवर्स कंफ्यूज है, इसको मैं कैसे दूं? भाई अगर आप कुछ मांगते हो ना, तो यूनिवर्स उसके लिए प्लेस पहले बनाता है, फिर ही तो वो आपको देगा। लाइक अगर श्रुति कह रही है मुझे एक अच्छे से हॉस्पिटल में नौकरी चाहिए जहां पे अच्छा सा पैसा हो, तो उसके लिए पहले जो उस हॉस्पिटल में कोई इंसान है उसको खिसकाया जाएगा अलग जगह, उससे पहले श्रुति को वो जगह नहीं मिलेगी, या वो पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन यूनिवर्स उन्हें डालेगा उनके माइंड में, राइट? नहीं तो उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। और जिस मोमेंट पे वो हो गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले, प्लेस बनाई ना यूनिवर्स ने। इट टेक्स टाइम, दैट मीन्स प्रिसाइज 1 thing at a time with persistence. I'll come to you, Yogita ji. 21 days of practice is required minimum. 40 days पे एक हैबिट बनता है, 90 पे एक नया सेल रीजनरेट हो रहा है। अगर इतना दिन कुछ कर लिया बार बार, उसके बाद आपके माइंड को, बॉडी को कोई कमांड देने का जरूरत नहीं, क्योंकि बॉडी ऑटोमेटिकली वैसे फंक्शन करने लग जाता है। ठीक है। नाउ पर्सनल, सो मेरे लिए मैं अपने आप को कविता की तरह एड्रेस कर सकती हूँ, या आई की तरह एड्रेस कर सकती हूँ, डॉक्टर भार्गव बोल सकती हूँ, राइट? तो एक इंसान अपने आप को किस तरह से एड्रेस करता है? अगर कोई भी बिलीफ सिस्टम हम नया बना रहे हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना।
आई एम अचीविंग गुड रिजल्ट्स या डॉक्टर कविता इज अचीविंग गुड रिजल्ट्स, हमें वैसे लैंग्वेज यूज करना है, पर्सनलाइज्ड करके देना है अपने आप के लिए भी, ठीक है। एंड फाइनली प्रैक्टिस as if you have already achieved it. You know, they say in order to believe in magic, you first need to believe in magic. सोचो अगर जो तुम मांग रहे हो वो मिल जाएगा, how will you feel? Get in touch with that emotion. और फिर वो जो मतलब ऐसा नहीं होता है कि EHCC में एक कॉन्फ्रेंस था, डॉक्टर खेदर बोल रहे थे, अपना स्पीच दे रहे थे। He said, सक्सेस जो है उसकी डेफिनेशन ये नहीं है कि when I will be successful, I will be happy. ऐसे नहीं होता। क्या होता है? When I'm happy, I am successful. So vibratory frequency उस happiness zone की लाओ, वो जोन जो तुम्हें फील होगा जब वो मिल जाएगा चीज, फिर वो तो पीछे पीछे आएगी ना, वो तो रुकेगी नहीं कहीं। थॉट्स टू रियलिटी, फ्लो चार्ट नंबर 1, राइट? वो तो आके ही रहेगा। सो प्रैक्टिस करने का है विद द फीलिंग एंड इमोशन अटैच। हर बिलीफ सिस्टम, जैसे छोटू मोटू बिलीफ सिस्टम्स इधर लिखे हैं, लेट मी जस्ट रीड। कुछ अच्छा होने से पहले स्नीज आना इज नॉट गुड, राइट? अच्छा काम है, तुमने छींक दिया, काम खराब होएगा। कैसा इमोशन अटैच करते हो? तो भाई अगर कुछ अच्छा सोच रहे हो, यहाँ से बिलीफ सिस्टम चेंज कर रहे हो, तो उसमें भी तो अच्छा इमोशन अटैच करो। वो तो हम करना भूल जाते हैं। वो तो हम सोचते हैं अरे ऊपर वाला देगा तो देखेंगे। क्यों? यहाँ तो बिलीफ बना लिया कि छींक दिया तो सब गड़बड़ है, और इरिटेशन महसूस कर लिया तो बुरा तो होके रहेगा। अभी इसको बदलना है, तो अगर मैं ये 7 P's डालती हूँ तो हम क्या बनाएंगे? यूजिंग दीज P's, कुछ अच्छा होने से पहले स्नीज आना इज नॉट गुड, यानी इफ आई एम रिप्लेसिंग इट, ओवरकमिंग दिस लिमिटिंग बिलीफ, कुछ अच्छा आने से पहले अगर छींक आ जाती है तो भी सब अच्छा होता है। नाउ अब क्या होगा फ्लो चार्ट नंबर 1 के थ्रू? तुम छींको ना छींको, सब अच्छा हो रहा, क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट। दूसरा बिलीफ अगर यहाँ देख रहे हैं, राइट आंख का फड़कना तो लड़ाई होना। भाई मान लो राइट आंख फड़क रही है तो कुछ नहीं, तुम्हारी आंख की मसल स्ट्रांग हो रही है। कैन वी थिंक लाइक दैट? वो एक्सरसाइज कर रही है ना, वो फड़क के, और क्या कर रही है? राइट? सो वी कैन चेंज इट लाइक दैट, ओके? एंड थ्रू दिस प्रोसेस, जो मैंने 2, 3, 4 स्लाइड्स बताई हैं, आई एम श्योर चीजें समझ पड़ रही होंगी कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ में और क्या कर सकते हैं आगे। ओके, लेट मी कम बैक टू द बिलीफ सिस्टम शुरू से। और क्या क्या है? हार्ड वर्किंग, भाई मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगा। क्यों भाई? पहले वाले जमाने के अगर हम जनरेशन वाइज देखते हैं तो हमारे जो एंसेस्टर्स हो गए, जैसे हमारे दादाजी एंड पीपल हो गए, या अंग्रेजों के जमाने के जेलर में वो वाली जनरेशन हो गई, वो लोग क्या करते थे? कॉन्स्पिरेसी में विश्वास रखते थे। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बेचारे हार्डवर्क में विश्वास रखते थे। और अभी जो जनरेशन है, हार्डवर्क यानी मेहनत वाली बात जो हो गई, प्रेस्पिरेशन, हार्डवर्क वो वाला प्रेस्पिरेशन वाला जोन था, जनरेशन था। एंड नाउ इज द जनरेशन जो प्योरली इंस्पिरेशन बेस्ड है। भाई कर ली ना तुमने हार्डवर्क, कर ली ना प्रेस्पिरेशन, तो अब इनफ मटेरियल यू हैव दैट वी कैन सस्टेन, राइट? अब हमें जो चीज इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, वहां जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ईदर जजिंग योर पेरेंट्स कि वो हार्डवर्क के लिए बोल रहे, अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर एंड विच बैकग्राउंड दे आर कमिंग फ्रॉम। करेक्ट? और हमें क्या करना है? अपना एफर्मेशन रखना है, ऑल दैट आई डिजायर कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। ये हमारा बिलीफ सिस्टम बनेगा। ऑपोजिट चश्मा बदलना है इसको। क्लियर है?
नेक्स्ट Yes, आता है, ma'am. नेक्स्ट क्या है? डिप्लोमेटिक. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, जस्ट वन पॉइंट. श्रुति, कैन यू इलैबोरेट? Which one, ma'am? Diplomatic, play dirty games, and straightforward. Can you elaborate these 3 points? I guess ये योगिता मैम का है, right? योगिता जी अनम्यूट करें और प्लीज एक्सप्लेन करें. Please. Oh, she went offline. नहीं, वीडियो बंद कर दिए. Okay, so I did not understand these 3 things. हाँ जी योगिता जी. डिप्लोमेटिक मतलब मैं इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, अगर आपको सक्सेस होना है कॉर्पोरेट में, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो अगर आप डिप्लोमेटिक नहीं बनते और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हो ना, तो आप वो चीज हासिल नहीं कर सकते जो आप डिजर्व करते हो. सो अगर हम इन सबको देखें, सी जैसे मैंने बताया इस स्लाइड पे, या सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस बेसिस, यानी कि कुछ ये जो सीयर है, कुछ तो हमारे एक्सपीरियंस पे बनता है, मैक्सिमम एक्सपीरियंस पे बन रहा है. अब एक्सपीरियंस हमारा पर्सनल हो सकता है और हम इम्बाइब कर सकते हैं किसी और से, तो ये सीयर बनता जाता है. अब जैसे आपने कहा अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है, राइट? यस. अब अगर मैं कहती हूँ मुझे ये चश्मा बदलना है, तो मैं कौन सा बिलीफ सिस्टम लूंगी? आई गेट व्हाट आई डिजर्व. उस पे फोकस करना है. ओके. राइट? इट्स अबाउट ब्रेकिंग द क्रिटिकल फिल्टर. वो चश्मा जो हम ही ने पहन लिया है कहीं ना कहीं, मुझे वो मिलता है, बेस्ट मिलता है जो मैं डिजर्व करती हूँ. क्योंकि अभी सबकॉन्शियस अभी स्ट्रॉन्ग फाइल कह रहा है भाई ये डिप्लोमेसी है, ऐसे मिलेगा, इधर आ गया वो. तो रोज न्यूरल पाथवे बनाना पड़ेगा 90 days. आई गेट व्हाट आई डिजर्व पे. And as I said, 7 P's, believe first. Barabar? Yes. Okay. Now, marriage for my parents is so important that they think that is my whole life rather than it's a part of life. Okay. Whoever is this question or the belief, probably what is happening here is, okay, you got to wait. I have a client and I'll just open the door and make her sit down. Hold on. विभा मैम, लावण्या है नहीं क्या सेशन में? नहीं, Lavanya has gone to her tuition, like I told you. She has gone herself. She didn't ask me. खुद ही चली गई है. No problem. She missed one of her coaching. That was, I think, 3:30. She missed that. She wanted to attend the session. So I knew कि मुझे मेरा मन नहीं है जाने का, कल मेरा टेस्ट है, तो आज मैंने कहा चलो नो प्रॉब्लम. इसलिए मैंने पूछा कि आज लेना है तुमने सेशन? बोली हाँ मैं आधा घंटा लूंगी. Okay, It's good so that she took the session. can we come back to the topic? I have a few minutes only now. My client is already here. Okay, so marriage is for my parents so important. Now this is again what is happening. Conscious mind is thinking continuously marriage is important, thinking overthinking or SP. Right? So whoever is this question is, उसको ये समझना है parents are talking from their responsibility or the way they have seen the life. जैसे मैंने 3 generations बताई, ट्रेस्पिरेशन वाली जनरेशन है, उनके लिए वही कॉन्सेप्ट्स हैं. तुम्हें क्या करना है, पहले अंदर भीतर झांको. व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ लाइफ? Do you want to get married? You don't want to get married? Do you want to focus on your career? Or if you want to get married, when do you want to get married? Get your facts straight and then speak to your parents. Make an effort. वो बुद्धू नहीं है, वो समझेंगे. पर यहाँ क्या हो रहा है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, marriage for my parents is so important that they think that my whole life is that, rather that it's a part of life. ये conclusion है, right? You got to break it, get your facts straight, and then do whatever you want, right? Maybe Shruti, you can take up a personal session with this person.
right? And then see how we can tweak. They say you're a girl and you have to do household things even if you're independent enough to survive on your own. Okay, believe me, I am single. I stay with myself, right? For me, it is not a necessity to do my household work. दम है तो उस जगह पहुंचो जहां पे तुम खुद अफोर्ड कर सकते हो किसी कुक को रखना, राइट? और अगर कुक भी है मेरे पास तो भी आई मेक श्योर कि वंस इन अ वीक आई एम कुकिंग फॉर माई सेल्फ. So I'm not doing these household chores for anyone else. It's for myself. At least for your own self, you should be in that zone. So I open myself up to doing at least my own work. And when you do the household work, what happens is the nurturance energy comes out. And when you nurture others or your own self, क्या हो रहा है? You are at the receiving end. इतना बड़ा belief system लेके क्या करोगे? अपना रिसीविंग क्लोज कर दोगे, फिर कहोगे यूनिवर्स हमारी हेल्प नहीं कर रहा. भाई तुमने रिसीविंग तो पहले क्लोज कर दी. You got to honor that divine feminine within you. I'm not asking you to get married. That is not my intention. My intention is to balance the yin and yang that you have. All of us have the masculine and the feminine. उसको balance करना जरूरी है, right? Are we clear on this also? So ये वाले थॉट सोचने ओवरकम करने के लिए, ये उधर घुसते रहोगे साइकिल में तो वो कॉन्शियस माइंड थिंकिंग रीजनिंग एनालिसिस कराता रहेगा. जितना घूमोगे उतना होगा. यू गॉट टू ब्रेक इट आउट. Then came, I can't say no to someone who's in need, like financial help, by giving time, and by giving time even though I'm getting late then also. Now see, what is the benefit out of this situation are you getting? क्या benefit हो रहा है? और क्यों खुद को पीछे रख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है हम जैसे बोलते थे बचपन से कि ये और ये, लाइक श्रुति, सुमन, योगिता, नहीं मतलब या मैं ऐसे बोलने लगी, मैं श्रुति, सुमन, योगिता जाकर खेलने जा रहे. अब हम क्या बोल रहे हैं? पीछे से डोंकी जना होता है जो फर्स्ट अपने आप को रखता है. तो हम क्या सिखा देते हैं? यू गो लास्ट. सो आई शुड फ्रेम द स्टेटमेंट लाइक श्रुति, सुमन, योगिता एंड आई आर गोइंग टू प्ले. ऐसे तो नहीं है कहीं ये सुन तो नहीं लिया डोंकी स्टेटमेंट. If you're a donkey, you keep yourself first. See that, right? Or are you seeing your mother doing everything for others and not getting respect in return? कहीं उनसे तो नहीं कॉपी कर रहे हो? कई बार माएं दे देती हैं. ठीक है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है. ओके, नाउ personally, I don't give preference to outer beauty, but people around me, especially family, does that. That I have seen, so I think they least like me or love me, because of which self-love, self-liking is also less. Of course, आप comparison देख रहे हो, conscious mind तोड़ेगा मरोड़ेगा इन thoughts को. तो क्या करना है? Simple है. I love and accept myself exactly as I am. And maybe, Shruti, you can share EMT wala link with them, demo link from the Instagram page. Yes. Yeah. To share it in the group right away, let them start practicing EMT. That's very important. Okay. Yes. I have a trust issue as well because it happened with me. I trusted people easily and they lied to me. So now I don't trust even my parents or husband completely. Trust issues are directly related with 0 to 1 years age of your life. अगर मॉम आपके लिए दूध गर्म करने जा रही थी और आप सोकर उठ गए, मॉम समवेयर इज इन द किचन वर्किंग फॉर यू, यू एज अ चाइल्ड डोंट नो, आपको क्या लगेगा? मम्मी मुझे सोता हुआ अकेला छोड़ के चली गई. अब वो इंसान जिस पे ट्रस्ट करके आप यूनिवर्स में आए, अर्थ पे आए, वो आप क्या कर रहे हो? उस पे मिसट्रस्ट करने लगे कि वो तो मुझे छोड़ जाती है, राइट? सो प्लीज एक्सप्लोर दैट 0 to 1 years का एज. कैसे करोगे? या तो लिखकर करो या थेरेप्यूटिकली करो. सो ट्रस्ट इज अ डीपर कॉन्सेप्ट, राइट? तो इसमें बिलीफ सिस्टम नहीं है. हाउएवर इफ यू वांट टू फोकस ऑन द बिलीफ लिमिटिंग, कैसे चेंज करोगे? यूज दीज 7 P's. लाइक आई ओनली इनवाइट ऑल दोज पीपल whom I can trust in my life.
और आई ओनली इनवाइट लॉयल एंड लवेबल पीपल इन माई लाइफ. इन पे फोकस करो, ठीक है. पर डीपर लेयर है उसके पीछे, ये याद रखना. तो ये इट्स जस्ट लाइक आपने सीड डाल दिया और खाद पानी नहीं दिया. ये वो कर रहे हैं हम थ्रू चेंजिंग द बिलीफ सिस्टम. पर चेक द डीपर लेयर. उससे क्या होगा, खाद पानी डाला, अब बीज पूरा उगेगा. ओके. I think I didn't get that much love which a child should get from his or her parents. So I feel there is no love inside me to give to someone else. अगर पेरेंट्स ने आपके साथ गलत कर दिया तो सामने अगर कोई आपके साथ में लव दे रहा है आके, तो आप उसके साथ क्यों गलत कर रहे हो? You've closed yourself here again. Again, your statement goes, I think I didn't get that much love. यानी पेरेंट्स तो दे रहे थे, हमारी थिंकिंग ने झोल कर दिया. क्या हमने उसको सही से देखा? क्या चश्मे सेम रख के देखा? ऐसा तो नहीं है हम अपनी विजडम पे चलते रहे और पेरेंट्स अपने तरीके से प्यार दिखाते रहे. दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो सीधा बोलता है आई लव यू, और दूसरा जो शो करता है आई लव यू. चेक पेरेंट्स कौन से टाइप में आते हैं. क्या वो शो करते हैं? There it is. Now write down how have they shown. लिस्ट बनाओ. You will get the idea. कहाँ कहाँ शो कर रहे. अरे अगर आप उन पे चिल्ला रहे हो, जैसे अभी कल परसों की बात है, कल एक सेशन हो रहा था यहाँ पे, उसमें थेरेपी में निकल के आ रहा है हिप्नोड्रामा. आई वाज गेटिंग इट डन हियर. नाउ my client is saying मैं उन मॉम पे चिल्ला रही. she kept judging her mother, okay, for giving everything और judging, you know, in the sense कि आप सारी फोकस अटेंशन हम पे दे देते हो, खुद के लिए कुछ नहीं करते. ठीक है. now in that drama, hypnodrama, what was happening is mom is saying, I mean, जब उनका रिप्लाई आ रहा है, वो कहती है कि मैं तुम पे वापस जवाब इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ. Check those moments when your mother did not reply back to you and you were still shouting. Maybe that was her way of showing love. Maybe some parents want to see you doing your best. चांटे भी धर सकते हैं उसके लिए गुस्से में. पेरेंट्स आर नॉट गॉड्स, वो परफेक्टली कहेंगे. दे आर नॉट मशीन की ऑन किया चलने लग जाएंगे, ऑफ किया बंद हो जाएंगे. दे आर ऑल्सो ह्यूमंस. सो गिव देम द राइट टू एक्ट एंड बिहेव लाइक अ ह्यूमन एंड इट इज ओके. वो लिस्ट बनाओ, तभी समझ में आएगा अरे ये तो प्यार शो कर रहे थे, मैं नहीं देख पाया. ठीक है. एंड देन आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम एंड आई इन्वाइट ऑल दोज पीपल whom I can love. और माई पेरेंट्स ऑल्सो लव एंड एक्सेप्ट मी. ये वाले एफर्मेशंस बनाने, बिलीफ सिस्टम पे फोकस करना. ओके. पढ़ाई कर लो, फन बाद में हो जाएगा. चेक हाउ मच फन आर यू डूइंग और हाउ मच पढ़ाई आर यू डूइंग फर्स्ट. पहले फैक्ट्स को स्ट्रेट करने का है. अगर एक्चुअली में 80% फन कर रहे हो, 20 पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम अपना उस स्टेज का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हो जो मिला हुआ है. 50-50 is okay. 80-20 पढ़ाई, 80 पढ़ाई, 20 fun is okay, right? And then see, okay, I mean, even though I'm in fun, I easily write my papers well. If you still want to focus on fun part, ठीक है. लड़के दोस्त नहीं होते और रिलेशनशिप वगैरह नहीं करनी चाहिए. वो क्या है, उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से बोल रहे हैं. उन्होंने ऐसे लड़के देखे हैं अपने लाइफ में, अपनी जनरेशन में, एंड प्रोबेबली इन दिस जनरेशन दे आर देयर, सो दे आर जजिंग अगेन. चश्मे का डिफरेंस है. ठीक है. सो as I focus on my studies, I invite only those boys in my life whom I can trust and rely upon. पहले इसको फोकस करो for 90 days and then see the difference. जो ट्रस्टवर्दी होगा ना वही रुकेगा, बाकी सब निकल जाएंगे एनर्जी फील्ड से. ठीक है. Making people... She is not in the session, but I know she has asked these questions. Very good.
Making people see you cry makes you look weak. In fact, if you don't cry, you are weakest. क्या कर रहे हो? Brave face लेके चल रहे हो. Right? So cry करो, but in front of close friends. 2-3 confidants रखो, उससे ज्यादा के आगे रोना भी नहीं है. See, वो तुम्हें वीक नहीं समझेंगे, पर तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे ना, who would like a crying baby always? उनको नेगेटिविटी अगर फील होगा तो वो कटते चले जाएंगे आपकी लाइफ से. बस इतना होगा. ठीक है? क्लियर? सो आई कैन क्राई इजीली इन फ्रंट ऑफ अदर्स और इन फ्रंट ऑफ माय क्लोज वंस. ये हो सकता है. और एज आई रिलीज माय पेंट अप इमोशंस, I feel lighter and happier. ये बिलीफ रखना है. ठीक है? अब एक क्वेश्चन था योगिता जी आपका. अच्छा, Yes, ma'am. एक और बचा मैसेज. Girls are not allowed to go outside at night. They should always cover themselves before they go out. हर लड़का एक जैसा होता है, तभी उनसे दूर रहना चाहिए. Again, how much strong are you? And how much careful can you be? So belief system क्या है? I am as safe as I want to be. उस पे काम करना है. अगर लड़का नहीं भी है कहीं भी और आप अगर इस पे बिलीव रखते हो कि आप सेफ नहीं हो, तो कहीं पर भी आप अनसेफ जोन इनवाइट कर सकते हो, भले आप गाड़ी क्यों ना चला रहे या घर पे क्यों ना बैठे. ठीक है? तो आई एम एज सेफ एज आई वॉन्ट टू बी. ओके. हाँ जी योगिता जी, अब आप अपना पॉइंट रख सकते हैं. आई एम सो सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग. नो कोई ओके. आपने जो मैम 7 पीस का बताया था ना, इसमें हाँ जी. आपने बोला था जब आप स्पेसिफिक करते हो वो 21 डेज तक करते हो तो वैसे होता है. लेकिन अगर हम कंटिन्यू वो चीज कर रहे तो भी यूनिवर्स नहीं देता, तो क्या चीज लैक हो रही है फिर उसमें? तो फिर ये लैक हो रहा है कि वो आपके ब्लूप्रिंट में है ही नहीं. 7 बॉडीज कॉन्सेप्ट अभी बताया, सोल के प्लान में नहीं है. आप कितने हाथ पैर मार लोगे, वो आपके प्लान में ही नहीं है, ब्लूप्रिंट में नहीं लिखवा के लाए हो. तो रास्ता बदलो. क्या है आपके ब्लूप्रिंट में, उस पे फोकस करो. ओके. ठीक है? या थैंक यू. कई बार ना यूनिवर्स कहता है कि भाई योगिता को मुझे देना एक सोने का प्लेट, पर योगिता का फोकस किधर जा रहा है? चांदी के प्लेट पे. वो लेने नहीं देगा, वो सोने का ही दिला के रहेगा, भाई कुछ भी कोशिश कर लो. ठीक है? ओके. वो चलो मैं आपसे फिर फ्राइडे में जो मेरे को सेशन लेना है आपसे, मैं तब डिस्कस करती हूँ डिटेल में. ठीक है. ओके. हाँ जी. एनी अदर क्वेश्चन और आर वी क्लियर? या विभा, like in the session, वीडियो ऑफ करके बात करिए प्लीज, आवाज कट रही है. हाँ जी. हाँ हाँ जी. जी. हाँ जी मैम. ठीक है. Am I audible, ma'am? Yes, I very have much, also ma'am. been Yeah. given. Yes, ma'am. I have also been given one affirmation by you or Neerja ma'am in a session which I attended. Like hard work के बारे में अभी आपने मुझे बताया था that I desire to have success easily with ease and grace. So the Yeah. 7 P's you have just mentioned, should I keep all these 7 P's in my mind while reciting the affirmation, or all the 7 P's should become my lifestyle? So it's okay if we understand these 7 P's, or if you have understood me or heard me all these sessions wise या जो भी, this has become a part and parcel of our life. बोलो ही ऐसा ना कि Yes. इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े एक affirmation बनाने के लिए. Right? Okay. So power of word, each word has its frequency. ठीक है? तो लाइफ में Yes. उतार लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन पे लाना है जिंदगी में. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think the 7 P's is a very powerful package which you have just mentioned, and there should be a separate session, series of session for these 7 P's only. I mean, this is my humble suggestion, or this is my humble request to Shruti and to you as well, because this seems to be very, very important in the life.
अरे इन 7 पीस पे हम जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं, किसी भी चीज को पकड़ के मोड़ सकते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we'll see श्रुति अगर कुछ वर्कआउट कर पाएगी, so we'll do that. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, so I guess we can call it a day then. 5:10 it is. Yes, ma'am. And all the best and follow all of this. I'll see you soon sometime. Thank Thank you. you for being here. Thank you, ma'am. Thank you so much, Thank ma'am. you. For the beautiful session. Okay. Thank you, Shruti. Okay, bye-bye. Goodbye, Bye. ma'am. Have a good evening ahead, ma'am. You Bye-bye. too.